Alhamdulillah. Okay, so we'll start our topic and discussion for today. Alhamdulillah. So today our topic is from school to future, preparing children for careers that don't exist yet. So when we are talking about Alhamdulillah school or institutions where our students are enrolled in, the main purpose of an institution is to prepare students for future, to prepare students for their career growth, for their career success. Try to understand one statement that I'm going to make now. One student during his school time is going to school daily 6 to 8 hours. Daily 6 to 8 hours, he or she is going to school. And for how many years? For continuous 13 years, right? If you add, the LKG, UKG, nursery, and then from first standard till 10th standard, 13 years, students are going to school. And after going to school for 13 years, daily from 6 to 8 hours, try to understand what should be the impact. But what we are facing, we are facing the biggest crisis, right? And what's this crisis is all about? The hidden struggle that not only India, globally, this hidden struggle is there. A generation of students without direction, generation of student without direction. So students, those who are going to school daily 6 to 8 hours, and for 13 continuous years they are going, but they are not getting prepared for life skills. They are not clear about what they want to do in their career. If at all they have some clarity, they will say that I want to become engineer, I want to become doctor, I want to become scientist. But what exactly, right? What is the roadmap, and where are the skills that they need in order to achieve their goal? Where is the roadmap? Where is the planning? If students, they are not doing planning with respect to what they want to achieve or what they want to become, it will be very difficult for them to achieve their goal. It will become very difficult for them to achieve their goal. So I will show some data and some statistic that tells us that the harsh truth. 80, 82% of Indian students, 82% of Indian students are unsure about their career path. They are unsure about their career path. And only 27% of schools provide some structured career guidance. That also is in a form of 1 day program or 2 day program or maximum 1 week program. There is no structured throughout the year program that will make them prepared with respect to life skills, with respect to communication skills, with respect to financial literacy, with respect to goal setting, with respect to career planning, and all those aspects. And another harsh reality: 1 in 3 graduates remain unemployed due to lack of planning. This is ILO report, right? That says us this data. 1 in 3 graduates remain unemployed due to lack of planning. Then comes the report published by India Today survey. 93% of Indian students, 93% of Indian students are aware of only 7 traditional career options. For example, doctor, lawyer, engineer, etc., etc. Out of 250 plus career paths available in India, 250 plus career paths. You see, there are, even if you take a small example of engineering. In engineering, apart from mechanical, electrical, civil, computer science, there are so many other branches. You talk about nanotechnology, you talk about metallurgical engineering, you talk about robotics, automation, material science, you talk about mechatronics, right? Aeronautical, aerospace. There are several branches of engineering. But what we are looking at, we only know very few limited choices. If that's what we are providing to students, that's what we are giving to students, then students will only choose from these limited resources, right? 74% of students feel unprepared for life decisions after schools. This was the report published by LinkedIn, right? You see what these numbers convey us. These numbers convey us that we need to provide direction to our students, right? And I'll tell you, when we are talking about career of a student, I'll give you a small example. If after going to school, after going to college, after going to university,
If students are not able to earn halal money and spend on halal things, then the dunya and akhirah, both of the things will, get disturbed, distracted, and destroyed. So hence we have to understand, if we are really recalling that hadith जिसमें जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से, तो अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को देने वाला बनाना चाहते हैं, देन वी रियली नीड टू मेक आवर स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर फ्यूचर करियर्स, फॉर फ्यूचर जॉब्स. हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में हमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करना है, और ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए स्टूडेंट्स इनोवेशंस पर, टेक्नोलॉजी पर काम करें, है ना. तो दैट्स व्हाट इज नीडेड. You see, 74% of students, 74% of students, huge number, and 85% of world's workforce is disengaged or unhappy in their job, right? Disengaged or unhappy in their job. Why? Because they haven't, thought about their career roadmap. They haven't prepared a career goal. They haven't worked on their career goal setting. They haven't, made a proper roadmap and planning. See, having an idea is a different story, but literally setting up a career goal, making a plan, executing that plan is what makes our student unique, and will make our student unique, and will bring results. If if that kind of thing is not, happening, then somewhere we are, lacking. Somewhere we have deficiency in our system. 40% of students worldwide regret their subjects or career choices in college. 40% of students. 70% of professionals, they say, they choose their career by chance, not by planning. World Economic Forum study. 70% of professionals, all the professionals, those who are sitting here today in this meeting, those who have joined the meeting, they can relate this. And in coming days, data and predictions and, all this research reports us that by 2030, 85 million jobs could go unfilled globally. Due to what? Due to skill mismatch. And this will come because of poor career planning. Poor career planning. And ये सारे पेन पॉइंट्स को देखते हुए, ये सारे पेन पॉइंट्स को समझते हुए, if we are really understanding, what will bring change is nothing but planning, goal setting, scientific thinking, project based learning, outcome based education, experiential learning. All these are the things that will bring change, and these things should be embedded as part of our education system and should be adopted by schools. Schools, those who really want to make an impact, those who really want to bring transformation. All right, I'll tell you, in a student's career, not only school is important or responsible, all the four stakeholders, student bazate khud, teachers, parents, and school, all the four members are important here. It's not one day's job or one person's responsibility. चारों के चारों लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, चारों लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं. अब हम देखते हैं ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने करियर गोल को अर्ली सेट कर लिया, स्कूल टाइम से ही सेट कर लिया. Students who set career goals early are 2 times more likely to succeed in their higher education and employment, right? So all these things suggest us that somewhere we need to give a thought with respect to what we are doing and what we are literally expecting from our education system. I'll tell you, there are schools, there are institutions, those who are telling that we have robotics lab, but tell me, how many students are literally solving problem using those robotics technology as a tool? I have diagnostic questions. I have prepared several diagnostic questions today to ask to, all the professionals, those who have joined here, those who are sending their students, their children to different schools, those who are from education system or education background, those people also might be here in today's discussion. You see, we need to understand what we are bringing to the table, what we are literally bringing. See, education is all about transformation. If 13 years, if a child is giving his 13 years to you,
as an administration, right? Or if to a school, right? Then there should be some outcome out of it. Then there should be some output out of it. So, myself, Dr. Ashar Ahmed, working, founder and director for Skillshare, working with talent development. Our agenda is talent development. If you ask me what Skillshare we are doing, our agenda is very, very simple. We are a talent development engine. We are trying to, scout talent. We are trying to develop talent, right? And with respect to talent development, we are working with, alhamdulillah, schools as well as higher education institutions. I'll tell you, there is serious need to start working at grassroots level. I'll tell you, when we have worked with several institutions. You name IIT Bombay, Madras, Kharagpur, Kanpur, Delhi. We have our students over there. You talk about different other institutions, engineering institutions or management institutions. We have worked with several students in order to bring employability skills. We have conducted several employment programs, employability programs. These programs gave us insight that we have to do some hard work at grassroots level. That's where we are trying to, work hard at grassroots level at school, so that the students, those who are coming to higher education, the students, those who are coming to, higher education, they will have clarity. They will have their goal. They know what they want to do. They know how they want to do, and they have their planning and roadmap, milestone, everything set. If that is not there, then it will be very difficult for us to achieve any goal. Thanks to our board of advisors and to entire team at Skillshare. So Skillshare, we started with a single agenda: fostering skills, innovation, employability, and entrepreneurship. I'll tell you, in today's time, these four verticals are very important: skills, innovation, employability, and entrepreneurship. So if you really want to make students, right, to if you really want to make them prepared to get good jobs, to get good employment, then we have to focus on skills. If you really want to, want students to start their own startups, become entrepreneur, then we have to make their thinking in innovative way, innovative thinking, critical thinking. We have hosted several programs with lot of institutions in India, abroad. We are officially supported by Ministry of Education. We were among the 75 startups as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. In past 5 years, right, we have upskilled more than 1 lakh plus students, 25,000 plus faculties from different countries, speaking different languages. So, from these insights, from these experiences, I'm telling you, we need to certainly work both for employability as well as career readiness. When it is coming to career readiness, it's very important that students, they have their career goal set. If they don't have their career goal set, if they don't have their career goal in front of them, then somewhere, we are not solving the puzzle rightly or correctly. I'll tell you, the silent crisis is students without direction. Students without direction. In the age of AI, automation, transformation, digital transformation, industries are getting redefined. Industries are getting redefined. Many students remain confused, uncertain, unprepared for the future, right? And if you look at the mismatch, if you look at the mismatch between education and industry needs, right? Education and industry needs, you'll get to know the first thing that we have is lack of self awareness. Students, they don't know their strength, interest, or values. I'll tell you, I have several case studies. We went to school, interacted with 10th class students. We have asked them what are their strength, what is their interest area, right? And what values they are, following, and what values, they have with respect to selecting their future careers. No awareness, no self awareness. So, lack of self awareness is the main key point, the first point with respect to mismatch between education and industry needs. The second thing, no clear career vision. Decisions are often influenced by peers, parents, or social media, not by facts or self reflection. I have several case studies in front of me.
in my documents. I can show you students. We have asked them why you have selected engineering. मेरे दोस्त ने सेलेक्ट किया इसलिए मैंने सेलेक्ट किया, मेरी सहेली ने सेलेक्ट किया इसलिए मैंने सेलेक्ट किया, मेरे फादर ने कहा इसलिए सेलेक्ट किया. They don't have knowledge, or they don't have any information about their strength, their interest, their values. And decisions are completely influenced by peers, parents, or social media, not by facts, not by self reflection. No agenda, no roadmap, no planning, no career goal. There are several benefits of early career goal setting. You study the Finland research report and a lot of other things that clearly suggest us that students in other countries where we are seeing higher employment, higher entrepreneurship rate, इन दोज स्कूल्स नाइन्थ क्लास में ही बच्चे को इस बात की क्लैरिटी रहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो कौन सा डॉक्टर बनना है, इसके लिए मुझे कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी मुझे कौन से स्किल्स पे फोकस करना है, अभी मैं अपना वक्त कौन से चीज़ों को सीखने में, सब्जेक्ट्स पे फोकस करने में डालूं, और फिर कौन से यूनिवर्सिटी से आई विल स्टडी, व्हाट आर द थिंग्स आई विल स्टडी फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन, देन व्हाट विल बी माय हायर एजुकेशन प्लान. Every detail they have documented, a complete roadmap they have in front of them with respect to their career vision. अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास काफी मोटिवेशन है. Hats off to all the motivational speakers, right? Those who are trying to open minds of our students, those who are trying to open minds of our parents, teachers and all. But अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, right? We have criteria of very minimal action. So in today's time, we don't need motivation. Certainly, we need motivation speakers. Okay. Along with motivation speakers, we need action speakers. We need action people. Those who are taking actions, right? We have ideas, right? Right? We have ideas, but we don't have tools. We don't have actions, right? Actions from students, action from parents, action from teachers. I'll tell you, there are so many open source tools that students and teachers can use to learn, relearn, to upskill. But are we really utilizing or leveraging those tools? No. We still have outdated exposure, right? Outdated exposure. We have a very good structure for fees. We have very good structure for labs and all. But you tell me how much that infrastructure or how much that lab facility or how much that particular thing is getting utilized or leveraged, right? How much that is getting leveraged, right? We don't have like the real future exposure. We don't have industry insights, we don't have industry exposure, right? And then fear of failure, high pressure, low clarity, that results in stress, then indecision and missed opportunities. That's why today, as part of the topics and as part of the things given, you know and presenting, I'm presenting the very important topic and matter to all of you, right? From school to future, if we really want to prepare a student from school to future, then goal clarity should be the priority. In today's volatile job landscape, students no longer need to prepare for just one career. They must prepare for multiple transitions, lifelong learning, and a world where skills evolve faster than textbooks. Right? Without career clarity and life planning, students they choose the wrong streams and courses. That leads to dropout rates, talent is wasted, misalignment, uninformed choices, mental health challenges, and leads to anxiety and indecision. Right now, I will tell you, this is my message to all the school holders or school management, school leaders. We already do goal setting. We do have career guidance session. We do have career planning. They often say this, but let's take a closer look. Let's take a closer look. A one day session will not work out.
Just a motivation talk without follow up action will not work out, right? Generic career fair with no personalization will not work out. No real curriculum is there, no outcome, and hence no assessment, no reflection, nothing. The result is we have superficial inspiration, minimal, or very minimum transformation output. Hence, I have prepared few diagnostic questions, and this is there. See, today when I'm talking with all of you on this topic, so as per agenda, I have few things to cover. I have few points to cover, right? So in that agenda, talking about present school practices and upcoming future careers, and why it is important for us to act early, then gap between school education and industry need, and what we are doing at Skillshark. I'll tell you what we are doing at Skillshark at last, but these are the things that need understanding and clarity. So these diagnostic questions are for all, for parents, for teachers, for schools, right? You tell me how many students, from your school, or how many children have participated in national or international STEM conferences, or they've been selected for academic exchange program or research summits, or published book, paper, or article. This I'm talking about school level. These things are happening at school level. But what exactly we are doing? How many students they have built working prototypes or tech solution solving a problem? I'll tell you, I have been to hundreds of science exhibition, science fair organized by schools. They invite me as a chief guest. I go there. I'll tell you with very sad reality. होता वही है, एक मिट्टी का हंडा लेकर आकर रखते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल फ्रिज है। वही वोल्केनो वाला प्रोजेक्ट होता है, वही गिने चुने प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सालों साल से चलते आ रहे हैं। देयर इज नो क्रिएटिविटी, देयर इज नो वर्किंग प्रोटोटाइप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, right? There are no participation of students in hackathons. No, there was one recent hackathon for Youth Ideathon that was conducted. I think CBSE was also a partner to it. There are so many things, you know. So in that hackathon or in that ideathon, how many students participated? How many schools participated? Right? How many students, they go in science fairs, right? How many of them they are leveraging Inspire Awards, Manak Award, or Atal Innovation Mission programs, schemes, training things, or platforms, right? You see, we have lot to discuss, do lot of things to वक्त फुर्सती कहाँ, काम अभी बाकी है, वैसी चीजें, like lot of things are there. So you see, has your school produced students who received Rashtriya Bal Puraskar Award, James Dyson Award? First of all, tell me how many people are aware about these things, Rashtriya Bal Puraskar Award, James Dyson Award, and how many parents they have nominated their children or their known talent for these awards, or how many schools they have nominated or taken part in these kind of fest competitions, awards and things. See, career diversity. Can you share data on alumni who are now in entrepreneurship, design, arts, media, social impact, policy, literature, sports, or any domain beyond engineering and medicine? No. We have criteria. हमारे इतने इंजीनियर्स हैं, हमारे इतने डॉक्टर्स हैं, जबकि सोसाइटी में हमें हर तरह के लोग चाहिए. वी नीड पीपल फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स. दैट्स हाउ इकोसिस्टम वर्क्स, दैट हाउ सोसाइटी वर्क. अगर हम कामयाबी का मेयार ये सेट कर लेंगे कि हमारे बच्चे अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं तो कामयाब है, लड़का है इंजीनियर बनता है तो कामयाब है, लड़की डॉक्टर बनती है तो कामयाब है, तो वी आर सेटिंग अप द रॉन्ग स्टैंडर्ड, वी आर सेटिंग अप द रॉन्ग अप्रोच, एंड दिस विल नॉट वर्क आउट, बिकॉज वी हैव टू सस्टेन एज ए सोसाइटी. और इस सोसाइटी में हमें अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे एस्ट्रोनॉट, अच्छे पायलट, हर फील्ड में अच्छे लोग चाहिए. और वो कैसे बनेंगे? जब स्टूडेंट्स के पास एक्सपोजर ही नहीं है, जब उन्हें करियर के ऑप्शंस पता ही नहीं है, जब उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग ही नहीं है, वो यंग साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? वो आगे जाकर साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? है ना? हम हम जो है कई सालों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और कितने साल वही नाम इस्तेमाल करेंगे? अगला एपीजे अब्दुल कलाम कब बनेगा? है ना? तो
अगर आपको हकीकत में इन सारी चीजों की जो है बारे में फिक्र है, और आपको मतलब हम सबको फिक्र है, तो जो है हमें कुछ ना कुछ इस बारे में सोचना होगा, है ना। आप बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे हैव डन इंटर्नशिप और कम्युनिटी प्रोजेक्ट और अटेंडेड अ करियर मेंटरिंग विथ रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल्स। हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं उनका एजेंडा सिर्फ यही होता है, प्रोग्राम के अच्छे फोटोज आए, तालियां बजें, इन फोटोज को कैप्चर करके हम मैगजीन में डालें, एनुअल मैगजीन में, न्यूज़ में दें, और ये सारी चीज़ें। प्रोग्राम के बाद आउटकम रिफ्लेक्शंस पे क्या हकीकत में बात होती है, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल, आप में से कितने लोग इस बंदे को जानते हैं? यहाँ पर मेरा सवाल सबके लिए है, अपना माइक ओपन करके आप बता सकते हैं, आप में से कितने लोग इस बंदे को जानते हैं? कहीं देखा हो? कितने लोग नाम जानते हैं? शाहिद साहब, सैफ भाई? जी। आप में से कितने लोग इन्हें जानते हैं? अच्छा, यहाँ पर पीपल हैव रिस्पोंडेड, डोंट नो। ओके। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ये स्कूटर को देखा हुआ है अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द? जी। अच्छा, 3 मैसेजेस आए हैं। यस, एथर, एथर इंडस्ट्रीज, यस। जी। तो ये जो बंदा हमें नजर आया था, ठीक है, ही इज फाउंडिंग टीम मेंबर ऑफ एथर एनर्जी, फाउंडिंग टीम मेंबर ऑफ एथर एनर्जी। तो मैं इनका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि किस तरह से अगर आप पर्सनल स्ट्रेंथ को अपने Sir, इंटरेस्ट से मैप you are not करना शुरू। audible, sir. So I'm not audible. Saibhai, can you You are, confirm? Am I audible? you are. Okay. So I was telling that I showed you this picture and I asked you how many of you are aware about this person. फिर मैंने सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग जो है इस स्कूटर को देखा है, जानते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये बंदा जो है इस फाउंडिंग टीम मेंबर ऑफ इथर एनर्जी, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेके आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से पर्सनल स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को मैप करोगे, पर्सनल स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को मैप करोगे, तो एक सक्सेसफुल केस स्टडी बन सकती है। किस तरीके से? आप देखिए, तरुण मेहता जो को फाउंडर है एथर एनर्जी के, तरुण मेहता, इन्होंने अपने अर्ली लाइफ, जहाँ पर ये राजस्थान में थे, ठीक है, ही यूज टू टेक इंटरेस्ट इन टेकिंग अपार्ट गैजेट्स। फिजिक्स पसंद था, इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद था। स्ट्रेंथ इनका ये था कि इंजीनियरिंग माइंडसेट रखते थे, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते थे, क्यूरियस थे चीज़ों को लेकर। इंटरेस्ट था क्लीन एनर्जी में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन में। तो इन्होंने क्या किया, अपने इंटरेस्ट को करियर से मैप किया, इंटरेस्ट को करियर से मैप किया। आउटकम ये आया कि आईआईटी में इंजीनियरिंग, फिर ईवी स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो इससे क्या पता चलता है कि इफ वी आर फैसिलिटेटिंग personal strength and interest mapping, this will bring results to us, this will bring results to us. Yes. Now what we'll do is we'll move ahead to next. कितने लोग जानते हैं साहब को, इन साहब को कितने लोग जानते हैं? Yes. CEO of Alphabet. जी। अब ये गूगल को कितने लोग जानते हैं? देखिए। जी। तो अब इनके केस स्टडी से हम क्या समझेंगे कि करियर डायरेक्शन शॉर्टलिस्टिंग कितना और क्यों जरूरी है, कितना और क्यों ज़रूरी है। सुंदर पिचाई साहब, जो मैथमेटिक्स में गुड थे, अच्छे थे, साइंस में अच्छे थे, टेक्नोलॉजी को लेकर क्यूरियस थे, ठीक है। फिर वो रिसर्च मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इस मामले में अनश्योर थे, लेकिन देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर को एक मैप दिया, डायरेक्शन दी, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया, लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग को, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया,
जब उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया, तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस एलिमिनेट ऑटोमेटिक हो गए। आर्ट्स, प्योर स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो गया। तो शॉर्टलिस्टेड जो डायरेक्शन था वो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, मैनेजमेंट, टेक्नो मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आ गई। तो बहरहाल वो किस डायरेक्शन में चले गए? वो टेक्नोलॉजी लीडरशिप में चले गए। अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि इन्होंने जो है आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया था? कौन से डिसिप्लिन में? किसी को पता है कौन से डिसिप्लिन में जो है इन्होंने इंजीनियरिंग किया था? जी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद इन्होंने जो है मटेरियल साइंस में मास्टर्स किया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने इन्होंने क्या किया? इन्होंने एमबीए किया पेंसिल्वेनिया से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आपको पता चलेगा कि व्हेन you are creating your career roadmap, when you are sketching your career roadmap, and you are aligning your skills, interests, value, motivators, and everything, you will be able to perform much better in career. Our students will be able to perform much better in career with respect to futuristic things, with respect to future things. Now, academic and skill gap identification. Students should be given a platform to identify academic and skill gap. To identify academic and skill gap. So let's suppose a student is there, उसे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। उसे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। स्ट्रेंथ पता है कि प्रैक्टिकल काम में अच्छा है, मशीन्स पसंद है, इंजन्स को लेकर क्यूरियस होता है, क्यूरियोसिटी है। अब गैप आइडेंटिफाई करेंगे। इंजीनियर बनना है, मैथ्स में वीक है। इंजीनियर बनना है लेकिन फिजिक्स के फॉर्मूला समझ नहीं आते, तो ये गैप है। स्किल गैप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बहुत कम है, लिमिटेड एक्सपोजर टू डिजाइन सॉफ्टवेयर है। तो अगर इन गैप्स को स्कूल टाइम से ही आइडेंटिफाई किया जाए, करियर रोड मैप सेट किया जाए, करियर गोल सेट किया जाए, तो एक्शन प्लान भी बनेगा कि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करनी है, कैड के बेसिक्स को समझना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फिजिक्स को कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग से समझना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से समझना है, राइट? So these things will happen. Now the next important thing, decision making and pressure handling. डिसीजन मेकिंग एंड प्रेशर हैंडलिंग। आप एग्जांपल लीजिए, टीना दाबी, यूपीएससी जो टॉपर हैं। प्रेशर सिचुएशन कित कई सारे होंगे जिंदगी में। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन है, फियर ऑफ फेल्यूर है। डिसीजन तो बना लिया है, तो अब स्ट्रक्चर्ड जो प्लान है उसको स्टिक होना है, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है, सेल्फ प्रोग्रेस पे फोकस करना है, स्किल्स को इस्तेमाल करना है। कौन से स्किल्स? डिसिप्लिन, इमोशनल रेजिलियंस, डिसीजन कंसिस्टेंसी। सारी चीजों को जो है करते हुए टीना डाबी, क्या रैंक था इनका, कौन बता सकता है? टीना दाबी, कोई कमेंट में बता सकता है? एयर वन। जी। तो हम यही बताना चाह रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, उससे यही बताना है कि आप यकीन जानिए, स्टूडेंट्स के लिए करियर गोल सेटिंग, साइंटिफिक थिंकिंग और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे चीज़ों को अगर हम स्कूल लेवल से एक्सपोज कराएंगे, स्कूल लेवल से बताएंगे, तो वो अपने करियर को, वो अपने जो है, जो अपना गोल है उसको बड़ी आसानी से अचीव कर पाएंगे। प्लस उनके पास एक ऐसा चॉइस होगा, एक ऐसा प्लान होगा दैट हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट, आउट ऑफ देयर क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग। मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। स्कूल टाइम में आई कम फ्रॉम उर्दू मीडियम बैकग्राउंड, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह 10th तक जो है मेरा पूरा एजुकेशन उर्दू मीडियम स्कूल में, उर्दू मीडियम से हुआ है। तो स्कूल में हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे पास अक्सर काफ़ी छुट्टियां होती हैं, फिर जो है क्या कहते हैं, दावतें होती हैं, ज़ियाफ़तें होती हैं, फिर स्कूल को बच्चे कम आते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना।
तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहरहाल उन चैलेंजेस पर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे स्कूल में बहुत कम एक्सपोजर मिलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल टाइम में मैंने अबैकस और वैदिक मैथमेटिक्स में एनरोल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबैकस और वैदिक मैथमेटिक्स में एनरोल करने की वजह से मुझे मौका मिला, आई गॉट अ चांस टू सिट विद अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, फ्रॉम डिफरेंट थॉट प्रोसेस। तो इन सब के साथ बैठकर पढ़ने का, समझने का मौका मिला। अबैकस में 8 लेवल होते हैं, एक दो लेवल करके लोग छोड़ देते हैं। तो टोटल 8 लेवल्स आई कंप्लीटेड। आई गॉट माई ग्रेजुएशन डिग्री इन अबैकस ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम। तो जो है, दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल एक्सपीरियंस। हमें पूरा जो ग्रेजुएशन सेरेमनी वाला ड्रेस रहता है वो पहनाकर सर्टिफिकेट दिया गया था फ्रॉम द वाइस चांसलर। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और साथ ही साथ आई कंप्लीटेड माय वैदिक मैथमेटिक्स कोर्स, तो आई एम अ सर्टिफाइड वैदिक मैथमेटिशियन। तो ये दो कोर्सेज की वजह से मैं आप बताता हूँ, स्कूल टाइम में काफ़ी एक्सपोजर मिला। मुझे खुद ये चीज़ पता हुई कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मैकेट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस। ऐसे कई सारे ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है। देन आई गॉट टू नो अबाउट मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन अस सो मच एक्सपोजर। वी वी हैड समथिंग कॉल्ड फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो हमारा टाइम टेबल हम खुद सेट कर सकते थे, अबाउट सब्जेक्ट्स, अबाउट टाइमिंग्स एंड लॉट ऑफ अदर यू नो आइट्रेशंस वी हम लोग कर सकते थे। तो बीटेक के 4 साल के इंजीनियरिंग में एक ही मंशा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखना, एक्टिविटीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीजीपीए भी मेंटेन किया हुआ था। तो यहाँ पर बीटेक में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये की रोल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ने अदा किया। 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आई डिड ड्यूरिंग माई बैचलर्स, ड्यूरिंग माई बीटेक। उसमें वी वर पार्ट ऑफ बिल्डिंग सैटेलाइट, वी वर पार्ट ऑफ बिल्डिंग humanoid robot, I was part of building solar electric car, electric bike, electric tractor, and so many interesting projects. और यूनिवर्सिटी ने मेरे आइडियाज पर, प्रोजेक्ट्स पर 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया। प्रपोजल्स पर, आइडियाज पर, रिसर्च पेपर्स, फिर ट्रैवल के लिए कई कई सारी चीज़ें। तो जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है। जो जो दोज हु वांट टू certainly do something, platform will emerge, platform will come. तो बीटेक के ये 4 साल के इंजीनियरिंग के बाद वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट वेंचर, वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट स्टार्टअप, माई सेल्फ अलॉन्ग विद माई को फाउंडर अकबर भाई। एंड दैट वाज भारत मोबी, जिसमें वी केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पेट्रोल डीजल कार्स इनटू इलेक्ट्रिक, conversion of petrol diesel cars into electric. And this startup, इससे हमें एक चीज जो ये पता चली कि आने वाले वक्त में, यू विल नॉट बिलीव, जब हमने भारत मोबी लॉन्च किया हमें हजारों कॉल्स आते थे कि सर आप अपना सेंटर हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में भी डालिए। बहुत सारे कार्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं पेट्रोल डीजल कार्स, जिसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो एक जो चैलेंज हमने जो यहाँ पर देखा कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, सोलार एनर्जी, मैकेट्रॉनिक्स, ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज, एआई जैसे टेक्नोलॉजीज आएंगे। आने के बाद क्या होगा? क्या हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है? क्या हमारे पास ईवी टेक्नीशियंस हैं? क्या हमारे पास ईवी मैकेनिक्स हैं? क्या हमारे पास बैटरी इंजीनियर्स हैं? क्या हमारे पास सोलार इंजीनियर्स हैं? क्या हमारे पास एआई इंजीनियर्स हैं? नहीं। एंड देयर इज नो इंजन टू प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ टैलेंट। तो इस नीड को समझते हुए हमने स्किल शार्क की बुनियाद डाली। स्किल शार्क में हमारा मुद्दा यही था कि हम किस तरीके से इस गैप को फिल करें, इस गैप को ब्रिज करें, कि जो एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में है, जो स्किल्स और स्टूडेंट्स के बीच में है। तो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड स्किल शार्क। एंड स्किल शार्क इन पास्ट वी स्टार्टेड इन 2020, जैन 2020 अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 5-6 सालों में हमने
जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू स्किल शार्क। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 75 डिफरेंट कंट्रीज, और इंडिया, अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की और ऐसे कई सारे मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स चल रहे हैं। वी आर एबल टू सी द रिजल्ट्स, एंड आई टेल यू the tagline is same: skills, fostering skills, innovation, employability and entrepreneurship। अच्छा, आप में से मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने एमबीए इन इनोवेशन सुना हुआ है? दिस कोर्स एमबीए इन इनोवेशन, एमबीए इन इनोवेशन, एमबीए इन फिनांस सुना होगा, एमबीए इन मार्केटिंग सुना होगा, एमबीए इन एचआर सुना होगा, ये तो रेगुलर चीजें हैं। एमबीए इन इनोवेशन सुना है? शुएब भाई कह रहे हैं नहीं सुना है। जी। तो देर वाज अ कोर्स जिसके बारे में मुझे पता चला, एमबीए इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, एमबीए आईईवी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट। तो आई एनरोल्ड इन दैट कोर्स, और उस कोर्स के थ्रू द होल आइडिया वाज वी वर वर्किंग ऑन अ कंप्लीट वी वर वर्किंग ऑन कंप्लीट idea, how we can, from idea to prototype or to a startup, what is that journey। तो ये एमबीए के 2 साल में कहानी यही थी कि आपको एक आइडिया पर, एक प्रॉब्लम पर, एक सॉल्यूशन पर जो है काम करना है, और उस चीज को जो है आगे लेकर जाना है, उस चीज को आगे लेकर जाना है। एंड you'll get degree based on the progress of idea, based on patent and things that are there to work, right। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें इस कोर्स का हिस्सा रही। तो उसके बाद जो मेरा रिसर्च थीसिस और ये सारी चीजें हैं, इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो मुझे ये चीजें बताने का मकसद यही है कि आई टेल यू, in education system, if we are providing right direction, if we are providing right exposure, if we are providing right platform, then students even from 10th class, when they are selecting their science stream or their commerce stream or their humanities stream, right, they will know why they are selecting and how they are selecting, and they have their complete roadmap and planning। I'll tell you, जो स्टूडेंट होता है आज के ज़माने में, होता यह है कि अगर बच्चे ने 10th क्लास में ज़्यादा मार्क्स ले लिए तो उसे हम साइंस में डाल देते हैं। अच्छा, उसी बच्चे ने 10th में कम मार्क्स ले लिए थोड़े से, तो हम उसको कॉमर्स में डाल देते हैं, और कम मार्क्स ले लिए तो उसे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में डाल देंगे। ठीक है। और और ज़्यादा कम मार्क्स ले लिए, और ज़्यादा कम मार्क्स ले लिए तो कहेंगे कि नहीं, इसे जो है कहीं काम पर भेज दो, या कहीं जमात में भेज दो, या कहीं जो है उसे इधर कहीं कहीं और जगह जो है लगा देंगे उसको। तो जबकि ये कंसेप्ट गलत है। हमें इंटरेस्ट और पैशन और बच्चों का जो करियर का रुझान है उसके लिहाज से स्ट्रीम्स चूज करनी। अब बहुत मर्तबा ये होता है कि बच्चों को इस बारे में एक्सपोजर ही नहीं होता, तो वो कहते हैं पेरेंट्स से कि आप ही बताइए क्या चूज करना है। तो इसीलिए वी हैव टू गिव अर्ली exposure to students so that when they come to 8 9 10th, or when they come to 10th standard, they have clarity about their goal कि मुझे जो है इस कॉलेज में पढ़ाई करनी है, इतने मार्क्स लेना है, ये सारी चीजें हैं। they have full clarity about their goal। और चीज नहीं होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती पर हैं, कहीं ना कहीं हम हमारी कोताही है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि साइंस स्ट्रीम में उन्हीं बच्चों को जाना चाहिए जिन्हें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, और उनके पास ऑप्शन रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस मैथ्स। और उसके साथ साथ अब जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आए हैं, तो 11th 12th में ही बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकता है। फिर हम आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम पर। कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में जिन्हें इंटरेस्ट है उन्हें जाना चाहिए, और जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। अब जिन्हें हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट है उन्हें आर्ट्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए। इसमें वो पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेजेस। अच्छा, इसके अलावा भी 10th के बाद बच्चों के पास वोकेशनल और स्किल बेस्ड कोर्सेज का ऑप्शन है, जिसमें वो
कंप्यूटर एप्लीकेशन में वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हैं, या हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म में, या रिटेल मैनेजमेंट में ना, या ब्यूटी एंड वेलनेस में जा सकते हैं, हेल्थ केयर में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, फैशन डिजाइन में जा सकते हैं, मल्टीमीडिया में जा सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं। कई सारी चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, ये भी नहीं करना, वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जा सकते हैं, इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल और ऐसे कई सारे और प्रोग्राम्स अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट दैट यू आर लुकिंग एट। और फिर उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री में मिल जाएगा एडमिशन। अच्छा, आईटीआई कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेफ्रिजरेशन और एसी के अंदर स्टेनोग्राफी, और ऐसे अभी और नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, जैसे सोलार टेक्नीशियन का कोर्स आ गया ना। फिर प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एनएपीएस की आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आप हिस्सा बन सकते हैं, उसके प्रिपरेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं करना तो बच्चे इमर्जिंग और टेक फोकस कोर्सेज में जा सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जावा प्रोग्रामिंग, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और ये सारे ऑप्शंस बच्चों को 10th के बाद मिल रहे हैं। आप बताइए कितने बच्चों को जो है इस बारे में पता है। अच्छा, अब 12th साइंस स्ट्रीम से किसी ने कर लिया, तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं? वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, है ना, ऐसे कई सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। अगर वो 12th साइंस से कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ हैं उनके पास, तो ये सारे कोर्सेस वो कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं करना तो बीएससी करना है, तो बीएससी में भी कई सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स और इंटरेस्टिंग कोर्सेस हैं। डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी, इमेजिंग ना, एमएलटी से कई सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। फिर आप चले जाइए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ। आप कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बी बीटेक। अच्छा, ये नहीं करना तो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, ये नहीं करना बैचलर ऑफ अर्बन प्लानिंग कर सकते हो, ये नहीं करना बीसीए कर सकते हो, ये नहीं करना बीएससी कर सकते हो। ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अच्छा, कोई पियर और अप्लाइड साइंसेस में जाना चाहता है तो बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अब आ गया बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फोरेंसिक साइंसेस, स्टैटिस्टिक, इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स। हाँ, आप में से कितने लोगों को, मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस? देयर इज एन इंस्टीट्यूट फॉर, यू नो, स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कितनों को पता है आप में से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में? कितनों ने सुना है? कितने लोग जानते हैं? तो ये सारे करियर ऑप्शंस, ये सारे करियर एक्सपोजर्स हमारे पास होंगे तभी हम कुछ दे पाएंगे। अभी ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल में पानी होगा तब मैं जो है ग्लास में डाल पाऊंगा। पानी की बोतल में पानी नहीं है तो मैं क्या उसमें जो है डाल पाऊंगा? नहीं डाल पाऊंगा, है ना। तो ये एक्सपोजर टीचर्स के पास होना, ये एक्सपोजर जो है स्टूडेंट्स के पास आए, जब टीचर्स के पास होगा, स्कूल के पास होगा, फैसिलिटेटर के पास होगा, पेरेंट्स के पास होगा, है ना, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा जिस बंदे ने कॉमर्स से 12th कर लिया है, उनके पास अकाउंटिंग, फिनेंस, बिजनेस, इसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना। बीएमएस एक बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, है ना। बिजनेस मैनेजमेंट एक डिग्री है जो बैचलर की तरह कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर आप देखिए, सीए के बारे में बेशतर लोगों को पता है, सीए के बारे में पता है, लेकिन हम में से कितने लोगों को कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पता है, और कितने लोग सीएफए, सीएमए जैसे प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं और इन इन सारे चीज़ों के बारे में इल्म रखते हैं ना, और बच्चों को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। फिर आता है इकोनॉमिक्स और एनालिटिक्स वाला, उसमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे बीएससी स्टैटिस्टिक हो गया, बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी तो मैंने जो है और इमर्जिंग टेक के ऊपर बात ही नहीं की, जिसमें आता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट ना, बीसीपी। और फिर मेडिसिन में अगर आप देखें तो हमारे पास बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं।
हम हमारे कितने डॉक्टर्स को पता है डिजास्टर मेडिसिन के बारे में, है ना, इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में? ऐसे फील्ड है जहाँ कोई जा ही नहीं रहा है, वहाँ एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अच्छा, तो ट्वेल्थ आर्ट्स से जो बंदे ने ट्वेल्थ कंप्लीट किया है आर्ट्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज से, उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। फिर वो लॉ, मीडिया, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, है ना, एजुकेशन में, टीचिंग में जा सकते हैं, क्रिएटिव डिजाइन और लाइफस्टाइल में जा सकते हैं, जहां पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप इस बैचलर डिग्री से हो, या फिर साइंस से हो, या कॉमर्स से हो, या फिर जो है आप क्या कहते हैं, आर्ट से हो या ह्यूमैनिटीज से हो ना। कई सारे ऑप्शंस हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेम डिजाइन, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, फाइन आर्ट्स, ऐसे कई सारी चीजें, ऑप्शंस कोर्सेज के अवेलेबल है। अच्छा, उसमें नहीं जाना चाहते बच्चे, तो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड एविएशन का सेक्टर अवेलेबल है, होटल मैनेजमेंट है ना, एविएशन है, ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, देर इज वन सेक्टर स्किल काउंसिल कॉल्ड लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल। इतनी जरूरत है टैलेंट की वहां पर, अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल में देखिए अवेलेबल नहीं है। हमारे पास मेटलर्जिकल इंजीनियर्स की कमी है इंडिया में। हमारे पास मटेरियल साइंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी है। हाँ? अच्छा, जो लॉ, डिफेंस और गवर्नमेंट करियर्स में जाना चाहते हैं, अनीस कुट्टी साहब जैसे हजरात दिन जो है अपना दिन रात लगाकर बच्चों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ करियर्स और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैन डू। डिफेंस और बहुत सारे ऑप्शंस, एनडीए, इंडियन नेवी, है ना, कोस्ट गार्ड, पुलिस सर्विस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी उनके पास अवेलेबल है। अच्छा, इसमें नहीं जाना चाहते, न्यू एज एंड एमर्जिंग करियर्स में जाना चाहते हैं, तो एआई है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स गेमिंग मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे ऑप्शंस जो है अवेलेबल हैं। अच्छा, डिप्लोमा करना है ट्वेल्थ के बाद, तो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटी, सॉफ्टवेयर डिप्लोमा, एनिमेशन, ब्यूटी, वेलनेस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्किल इंडिया, एनएसडीसी के कई सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कई सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपसे लिंक भी शेयर करता हूं, अगर कोई हमारे प्रोग्राम्स या फिर जो चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अब हम जो है स्किल शार्क में क्या चीज़ें कर रहे हैं। I'll share my screen for the playing the video as well, and then we'll get back to the Q&A and the other part. ये जो सारे इनोवेशंस आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं।
All right. So, I have some key message to all the audience and all the people, those who are, attending this session. So, in today's time, it's very important for us to work on few important areas. The first is career goal setting and life planning. Career goal setting and life planning. So we have to certainly work on this area. you know Schools, parents, teachers should start working around this topic: career goal setting and life planning. Second area is developing scientific thinking of our students, right? And third area is making them capable, competent to build their startups, build ideas, and towards entrepreneurship. So, Alhamdulillah, we are working with Skillshark. As a Skillshark, we are working with schools as well as higher education institutions. With higher education institutions, we work towards employability program, skill development program. With schools, we work with three flagship programs. The first one is career goal setting and life planning as a subject in school, not as a 1 day program, not as a 1 hour program, but as a subject in school, right? And second program is young scientist program, where we tailor students creativity thinking, and we give them a platform and exposure with respect to the scientific thinking, research papers, and lot of other insights. And third program is young entrepreneur program. So the whole objective of these program is to prepare students for future. We are ready to collaborate with institutions, with stakeholders, with thinkers, with innovators, with school leaders, or those who want to bring transformation, right? Transformation advocates, or people those who are really looking forward to bring transformation, right? We are ready to give whatever support that is possible from our end. मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हर कोई इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर जाए, तब भी काम इतना है कि हमारी जनरेशन खत्म हो जाएंगी, काम नहीं खत्म होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के थॉट प्रोसेस देखिए, आज माइंडसेट बिल्ड होगा, तब जाकर स्किल सेट बिल्ड होगा। माइंडसेट बिल्ड होगा, तब जाकर स्किल सेट बिल्ड होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि हम इन एरियाज पर स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए काम करें, आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे काम करें। अगर किसी को कुछ सवाल है तो हम जो है आंसर कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलते हैं। ऑफलाइन प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर वीक अराउंड 2000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं ऑफलाइन प्रोग्राम्स में, करियर गोल सेटिंग, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम में। ऑफलाइन में हम अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लेज हमारा प्रोग्राम जो चलता है हैदराबाद में चलता है। इसके अलावा हम 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज और 1 मंथ के बूट कैंप्स अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग प्लेसेस में भी कराते हैं। और ऑनलाइन जो प्रोग्राम है वो, ये तीनों प्रोग्राम ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं: करियर गोल सेटिंग एंड लाइफ प्लानिंग, दूसरा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, तीसरा यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ साथ हम उन्हें जो है ऑफलाइन सिंपोसियम विजिट और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इंटीग्रेट किए हैं, ताकि जो एक्सपोजर है शुड बी डाइजेस्टेड इन अ राइट वे। So another question I can find in the chat box: as a school, how can we introduce these programs in schools? तो इसका हमारे पास करिकुलम बिल्ट है, इसका हमारे पास पूरा डिलीवरी प्लान। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे बहुत सारे पब्लिशर जो गलती करते हैं, बहुत देर आर सो मेनी पब्लिशर्स इन इन मार्केट जो बुक्स बनाते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलाइन बुक्स वगैरह बनाते हैं। देखिए हमें किताब बनाने से पहले, करिकुलम बनाने से पहले जो चीज़ पर काम करना है वो है फ्रेमवर्क। अगर फ्रेमवर्क बिल्ट होगा तो उसके बाद आना चाहिए करिकुलम, फिर उसके बाद आना चाहिए डिलीवरी प्लान। क्योंकि बहुत सारे लोग बुक्स बना लेते हैं, डिलीवरी प्लान नहीं होता, फिर फंस जाते हैं। फिर उसके बाद आना चाहिए असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्रेमवर्क, हमारे पास करिकुलम इनोवेशन, करिकुलम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह असेसमेंट, और उसके साथ साथ डिलीवरी प्लान रेडी है। तो स्कूल से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, यू यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करता हूँ और पर्सनल ईमेल आईडी भी शेयर करूँगा। तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके स्कूल एक सर्वे विजिट करेंगे। इफ़ यू हैव कॉम्पिटेंट टीचर्स देन वी कैन हैव द ट्रेनर वाला मॉडल। आपके टीचर्स को हम ट्रेन कर कर, यू कैन सर्टनली रन दिस प्रोग्राम और एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम।
मैं यही चाहूंगा कि आपके स्कूल जो है सेल्फ रिलायंट बने, इस प्रोग्राम को खुद रन करने वाले बने, ताकि और दूसरे स्कूल्स में हम काम कर सकें। अगर हर जो है इतना बहुत ज्यादा काम है, काम जो है इस एरिया में, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम में स्कूल लेवल में आप देखेंगे तो एक मर्तबा एडमिशन होने के बाद वो एक्टिविटीज, वो प्रोडक्टिविटी नहीं नजर आती जितना जो है एडमिशन के वक्त जिस जो चीजें दिखाई जाती हैं। तो बहरहाल हमें काम करना है ना। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो बस हमें काम करना है इंशाल्लाह। और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मैं साहिब भाई से वही दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह के स्टेक होल्डर्स की जो है ऑनलाइन ऑफलाइन मीट्स आप जो है करवाते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिक्र से जुड़ें, इस थॉट प्रोसेस से जुड़ें। एजुकेशन सिस्टम ही वाहिद चीज़ है जो जो थॉट प्रोसेस को, माइंडसेट को तब्दील कर सकता है। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Audience can unmute themselves and ask questions. Better to keep in English because we have audience from all over the place. Yes. If you have any question, feel free to ask. There are few questions in the chat box. Ashar bhai, will you like to take them? Yes, I think I have Others can answered. speak also, please. I Okay. have referred the questions from chat box. Do you have any further questions? You can speak or put in the chat box so that Dr. Ashar can take them. Here is my email ID and personal number for calling and you know uh, WhatsApp. So my native is from Maharashtra. I completed my schooling till 10th class and then 11th 12th from Maharashtra, right? There's a place called Solapur, Maharashtra, and after that I got admitted at SRM University, Chennai. SRM University, I think many of us are aware about SRM University, right? And when it comes to 4 years of engineering, I completed from SRM University, Chennai, and after that I got enrolled for MBA in Innovation, Entrepreneurship, and Venture Development. So this program was offered by Gujarat Technological University, and along with that we had a startup school at IIM Ahmedabad, and Stanford Seed Spark program also I was part of. And after that the whole research journey and lot of other thing started. I hope I answered your question, Nazia Sheikh. Then yes, so you know Rafat is telling generally people are not aware of financial aspects in other. Yes, so we have to understand. I'll tell you, my recent flight from Srinagar to Delhi. I met someone. That lady, she is working as a scientist with government, and I asked what kind of courses you did and what you are doing presently. So she said उन्होंने जो है she completed BSc agriculture, she completed MSc agriculture. After that she completed PhD in microbiology. Now she is working as a scientist, as a researcher, scientist C or scientist D, she is working. So people, and I asked how much you have spent for entire education. She said I haven't spent for my entire education, including from bachelor's to master's to PhD, not more than 1 lakh, including my accommodation, food and everything, she said. तो लोगों को पता ही नहीं है फाइनेंशियल एस्पेक्ट फॉर अदर फील्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स they need and all those things. So we have to understand this aspect as well. Then another question is, if someone wants to shift to a new career stream despite being at mid level and wants to reset their goal and grow further in there, is it possible? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आज जो मैंने टॉपिक पर बात की है वो है करियर गोल सेटिंग एंड लाइफ प्लानिंग, राइट, एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल्स, स्पेसिफिकली फॉर स्कूल
or college students. When we are talking about students, those who are in higher education, जैसे बैचलर्स, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए या इस तरह के कुछ कोर्सेस में हैं, तो उनके लिए वी हैव अनदर प्रोग्राम कॉल्ड करियर रेडीनेस प्रोग्राम, जिन्हें अभी फॉरेन करियर में कूदना है, करियर में जाना है, करियर के फील्ड में जाना है, देयर इज अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर देम, करियर रेडीनेस प्रोग्राम. अब जो लोगों को जो है करियर स्विच करना है, बिफोर दैट ऑल्सो दे नीड रोड मैप एंड प्लानिंग. सो वी हैव अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर these working professionals, those who are at some level and they want to switch the, you know, a career. So it's career transition program we have. So you can certainly connect with me. I would be happy to help you out with that, right? तो अबाउट ट्रेडिंग एंड स्टॉक, आई सजेस्ट, देखिए करियर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे करियर्स विथ रिस्पेक्ट टू इन बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल, तो उलमाए कराम से रुजू करना हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है. वो हमारे लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह गाइडिंग लाइट हैं. तो रिगार्डिंग एनीथिंग हलाल और हराम, मैं खुद उलमाए कराम से जो है रेफ़र करता हूँ, तो उनसे रेफ़र करना बेहतर है. नाजिया शेख का सवाल है, एमबीए इनोवेशन इज ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 2 इयर्स एमबीए प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है, जिसमें आपको आइडिया से अपने प्रोटोटाइप और स्केल पे काम करना है. अपने ही आइडिया, आपको ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, आपको पिच करना है, उसी आइडिया पे काम करने के लिए आपको ग्रांट फंड्स दिए जाएंगे, आपको डिग्री भी मिलेगी. देखिए, हमने जो अभी प्रोग्राम बनाया है 8, 9, 10th क्लास के लिए बनाया है, और इसके पीछे बड़ा ही थोरो रिसर्च किया था. पता ये चला कि जब बच्चा 8th क्लास में होता है तो वो इतना शऊर रखता है कि उन्हें करियर में क्या करना है, कैसा है, ये चीज़ें समझ में भी आती हैं, डाइजेस्ट भी कर पाती हैं. तो 8, 9, 10th एक अप्रोप्रिएट एज हमारे रिसर्च के हिसाब से हमें लगी, इसीलिए वी हैव टेलर्ड कोर्सेज फॉर 8, 9, 10th, 11, 12, दिस काइंड ऑफ ऑडियंसेस और दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. इफ़ यू वांट द डेटा और भी किस क्या रिसर्च थी, क्या थी, तो मोहम्मद शुएब साहब, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. आप ईमेल या मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा. देन आर देयर एनी स्पेशल कोर्सेज डिजाइन फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स? जी, 1 to 7, देखिए 1 to 7 में कुछ प्रोग्राम्स हम कराते हैं, बट दीज आर नॉट करिकुलम बेस्ड. हम जो प्रोग्राम कराते हैं, वी हैव डिजाइन फ्यू प्रोग्राम्स, ठीक है, दैट इज सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, जिससे उन्हें लाइफ स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, लाइफ स्किल्स मेजरली क्लास 1 to क्लास 5 हम लाइफ स्किल्स के प्रोग्राम्स के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कराते हैं. ठीक है, तो वी कैन सर्टेनली डिस्कस ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो, अगर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड. जी, the majority of youngsters in India have committed the mistake of wrong career choice or mismatch to their stress. Do you have program to guide this? Yes. तो जो स्टूडेंट्स ने अभी सिलेक्ट कर लिया है, तो उनके लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वी हैव करियर रेडीनेस प्रोग्राम, नॉट करियर गोल सेटिंग एंड लाइफ प्लानिंग प्रोग्राम, करियर रेडीनेस प्रोग्राम, जो उन्हें बताता है कि अब जो उन्होंने सिलेक्ट किया उसमें उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन, बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है और किस तरह से हो सकती है. हाउ टू आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ देयर करियर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज के ज़माने में व्हेन वी आर हैविंग एआई, ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूँ दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ टेक अवे मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस. एआई को अगर कोई चीज़ कॉम्पीट कर सकता है, वो है सीआई. सीआई क्या चीज़ है सैफ भाई? सीआई के बारे में सुना है आपने? जी सैफ भाई. जी, सीआई है कलेक्टिव इंटेलिजेंस. सीआई है कलेक्टिव इंटेलिजेंस. तो साहब, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर कोई चीज़ बीट कर सकता है, वो है कलेक्टिव इंटेलिजेंस. तो इसीलिए जब आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चे के स्किल्स, इंटरेस्ट, तो इसके लिए वी हैव टू बी थोड़ा सा ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ, देर आर फ्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, जिससे करियर पाथ के लिए अलाइनमेंट और ये चीज़ें पता चलती हैं. हम जो है हमारे प्रोग्राम में वी आर नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर ये कुछ इस तरह के एनालिटिक्स टूल्स और ये चीज़ें. वी आर सर्टनली फोकसिंग ऑन इंट्रैक्शन, एंड वी हैव डिजाइन द फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई द करियर अलाइनमेंट. तो व्हाट अबाउट प्री प्राइमरी स्कूल्स डिज़ाइन इन योर आइडिया? देखिए, प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्कूल के लीडर से मिल रहे हैं, उन्हें यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन में आप बच्चों के लाइफ स्किल्स, बच्चों को पेशेंस,
कैरेक्टर बिल्डिंग और ऐसे चीज़ों का जो है फ्लेवर तभी से देना स्टार्ट कर दें, ताकि 8 9 10th में बच्चे के अंदर इतना शऊर और सीरियसनेस आ जाता है। अगर आप 5th 6th के क्लास के बच्चे को करियर के बारे में बोलोगे तो वो सोचेगा कि अभी मेरे पास काफ़ी वक्त है, लेकिन 8 9 10th इज वेयर दे कैन रिलेट कि भाई हाँ, ये मेरे लिए ज़रूरी भी है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है ना। एंड वेयर इज़ योर ऑफलाइन एकेडमी? हमारी ऑफलाइन एकेडमी हैदराबाद में है, हमारे 2 ऑफिसेस हैं, एक हाईटेक सिटी में है और एक जो है एलबी नगर हैदराबाद में है। आपको लोकेशन और इन्फॉर्मेशन आप मैसेज या मेल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। जी, सीआई के कोर्सेज के लिए देखिए, सीआई के कोर्सेज हम अक्सर जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं उसके ऊपर हम कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, हम मीटअप्स कराते हैं, ताकि हमारे लोगों को पता चले हाउ वी कैन ब्रेनस्टॉर्म, हाउ वी कैन हैव पीयर हडल पीयर हडल एंड वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमने एक प्रॉब्लम बैंक बनाया हुआ है, उसमें तकरीबन हमारे पास 2000 प्रॉब्लम्स हैं। तो हर साल हम एक प्रॉब्लम के ऊपर कुछ इनिशिएटिव और कुछ काम करने का हमने मंशा बनाया है। जी, सीआई इज कलेक्टिव इंटेलिजेंस, एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता है। तो सीआई इज कलेक्टिव इंटेलिजेंस। तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस में अल्हम्दुलिल्लाह सैफ भाई की सलाहियतें, उनकी जो खुसूसियात हैं, है ना, फिर जो हर किसी की सलाहियतों को एक कलेक्टिवली कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के साथ लेकर चलना इज कलेक्टिव इंटेलिजेंस। देखिए, विच इज बेटर, बेटर के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अ, मशवरे में खैर है, ये ये हमारा दीन हमें बताता है ना। तो शूरा मशवरा, है ना, ये सारी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टिव इंटेलिजेंस ये ऐसी चीज है, हम अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं लोगों को, तो वॉट एवर काइंड ऑफ टैलेंट, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज वी हैव, राइट, सो टेकिंग दैट इन अ कलेक्टिव वे विल benefit the whole world, alam, inshallah. Any other question? जी, आई थिंक नाजिया शेख ने किया है कि सो रिलेटेड टू सीआई व्हाट डू यू फील। जी, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे सीआई के बारे में, कलेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में, तो देखिए कलेक्टिव इंटेलिजेंस में ये जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी एक बंदे की भी हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, मशीन की हो सकती है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजन। ये सारे कैपेबिलिटीज को एनहांस और एक कलेक्टिव वे में लेकर चलना, हार्नेस करना, यही कलेक्टिव इंटेलिजेंस है ना। तो जी, शहजाद साहब का सवाल है, हाउ कैन वी मेक आवर करियर बेस्ड ऑन आवर प्रोफेशन व्हेन द प्रोफेशन इज समथिंग लाइक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ओके, तो जैसे मैंने बताया आपको कि देखिए, आप जो है अपने करियर में एक चीज है जो प्राइमरी कर सकते हो, दूसरा है सेकेंडरी। अब ऐसे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आर्ट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो 5 दिन जो है अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, जो वीकेंड होता है तो वो कोई आर्ट एग्जीबिशन, कोई आर्ट इवेंट या फेस्ट में, इसमें उसमें चले जाते हैं। तो आपके प्रोफेशन, आपके इंटरेस्ट में जो चीज़ होगी, तो एक होगी जो आप प्राइमरी करोगे, दूसरी होगी जो सेकेंडरी करोगे। अगर आपको प्राइमरी जो चीज़ करनी है उसे ही आप अपना प्रोफेशन प्रोफेशन या फिर फुल टाइम चीज़ बनाते हो, तो वो डिपेंड करता है आप उस बारे में कितने सीरियस हो। जैसे मैंने बताया है कि इंडिया में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कई सारे प्रोग्राम्स कोर्सेज कराता है जिसमें यू कैन लेवरेज योर स्पोर्ट्स थिंग्स एज ए प्रोफेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, हैदराबाद हो या कोई और शहर हो, उसके लिए हमने कुछ रूब्रिक्स बनाया हुआ है। आई कैन शेयर यू दैट रूब्रिक्स और फिर मैट्रिक्स, जिसको आप कंसिडर करते हुए कोई एक कॉलेज को डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये कॉलेज क्या है। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि कॉलेज
एक एलिमेंट है। दूसरा, हाउ यू हैव दैट टैलेंट टू लेवरेज दैट कॉलेज। अभी मैं बताऊं, हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट थे, हजारों स्टूडेंट्स थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हर स्टूडेंट पर 1 करोड़ रुपया नहीं खर्च किया, हर स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स आइडियाज पे उतनी चीजें नहीं खर्च की। तो ये डिपेंड करता है हाउ वी आर लेवरेजिंग और हार्नेसिंग द थिंग्स। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवाल के मुताबिक मैं आपको, यू कॉन्टेक्ट अस, आई विल शेयर यू द मैट्रिक्स इंशाल्लाह। एज यू स्टडीड वैदिक मैथ्स। जी, तो वैदिक मैथ्स और अबैकस से फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे जगहों पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैलकुलेशन आसान हो गया, है ना। अगर मुझे कहीं पर 99 का स्क्वायर निकालना है तो मैं 1 सेकंड के अंदर 9801 लिख देता हूँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना, कुछ स्कॉलरशिप के एग्जाम्स में, फिर जो हमारा दूसरे एग्जाम्स रहते हैं, JEE गेट, तो हर जगह जो है वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को लेकर एक डर नहीं रहता है और एक खौफ नहीं रहता है, और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये मैथ्स मैं कहूँगा कि ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो अनीस कुट्टी साहब भी हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि मैथ्स जो है ये इवन डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है साहिबा, इंशाल्लाह इसी के साथ हमारा जो सेशन है उसे हम कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। अगर और किसी को कुछ सवाल है तो हम, दे कैन कॉन्टेक्ट अस इंशाल्लाह। जी साहिब भाई, एम ऑडिबल? हेलो साहिब भाई, एम ऑडिबल? आखिर के कुछ सवाल हैं, जब तक साहिब भाई रिस्पॉन्ड करे तब तक। एट व्हाट एज वी शुड स्टार्ट अबैकस एंड वैदिक मैथमेटिक्स? तो जब बच्चों को नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीजें समझ में आ जाए, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो आप अबैकस सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली थर्ड क्लास, थर्ड थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ये एक आइडियल टाइम होता है जब जब बच्चों को जो है चीजें समझ में आ रही हैं। तो अबैकस के पूरे 8 लेवल अगर कंप्लीट कराने का आप इरादा रखते हैं तो ये एक अच्छी एज है जहाँ पे आप एनरोल कराकर पूरे 8 लेवल्स कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है जी। विच कोर्सेस हेल्प अ स्टूडेंट टू स्टार्ट हिज करियर एज सुन एज पॉसिबल? देखिए, जब बंदे को कोई अपना करियर और अपना जॉब जल्दी से स्टार्ट करना है, तो ये डिपेंड करता है। देखिए, करियर बनाने के लिए, जॉब करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लंबी लंबी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। देर इज समथिंग कॉल्ड जॉब, देर इज समथिंग कॉल्ड करियर, देर इज समथिंग कॉल्ड कॉलिंग। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉब, करियर एंड कॉलिंग। तो इस डिफरेंस को समझते हुए आप प्लान करोगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो आप फर्दर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताता हूँ। और which platforms are good for Vedic maths and abacus? There are so many people nowadays they are providing, Vedic mathematics or abacus thing. आप कौन से सिटी से हैं, कहाँ पे हैं? इफ़ यू आर गिविंग मी मोर इन्फॉर्मेशन वाया चैट और ईमेल, आई कैन टेल यू के इन दैट पर्टिकुलर सिटी और इन दैट पर्टिकुलर प्लेस क्या एक आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन कौन सा मिल सकता है। देखिए, आई एम अ वैदिक मैथ एजुकेटर, माशाल्लाह, बहुत खूब। देखिए, तो बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ ना, कलेक्टिव इंटेलिजेंस हमें ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जो है हम यूटिलाइज करें। यहीं पर हमें जो है वैदिक मैथ एजुकेटर मिल गए, यहीं पर जो है आपको करियर गोल सेटिंग का चीज़ मिल गया, कई सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह मैं सैफ भाई से कोऑर्डिनेट करता हूँ, और उसके बाद विल प्लान फॉर सम नेक्स्ट सेशन विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंसाइटफुल डिस्कशन। जज़ाकल्लाह खैर। सैफ भाई, एम ऑडिबल? हेलो?
All right. I have another meeting scheduled at 3:30. Sabai, I would like to take a you know mo- moment to thank you and the organization and the organizing committee for inviting me to be part of this session. Thanks a lot. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.